A very good afternoon to one and all. You can't believe in God until you believe in yourself. By this sacred thought of Swami Vivekananda, I, Stuti Yadav, welcome you all to the fourth day of the spiritual workshop on the life history of His Highness Swami Vivekananda by Ved Shastri Sampann, Sri Pranav Shastri Ji. As per the culture of Jaipur, every auspicious occasion is commenced with Saraswati Vana, and so will be this. I request you all to stand up at your places for Saraswati Vana. Before we proceed towards today's session, let's have a glimpse of the past three sessions. On the very first day of the session, Sri Banerjee told us the significance of Swami Vivekananda's life history for management students like us. Vivekananda is an epitome of leadership and excellence. He also enchanted huge stories that took us to an altogether different spiritual world. On the second day of the workshop, Swamiji narrated us the childhood and youth of Swami Vivekananda, who is also known as Narendra. Swami Vivekananda was a daring, fearless, inquisitive, knowledgeable person. He was a good singer, great orator, and a brilliant scholar as well. On the third day of the workshop, Swamiji told us about Vivekananda's journey and stay abroad, how humble, kind, modest, and patriotic a person he was. He was also a great philosopher, reformer, revolutionary, and had no ego. He always encouraged and motivated youth. Swami Vivekananda once said, "लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या एक युग उपरांत, तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना हो." Now, before I request Sri Pranav Ji to commence today's session, I would like to share with you all that today we are privileged to have among us Mrs. Anjali Jaipuria, Vice Chairperson of Jaipuria Institute of Management. Although Anjali ma'am needs no introduction, but still I would like to share a few things about her. Anjali ma'am is an educator with a vision for fundamental change in the Indian educational system. To this task, she brings her love for Vedic wisdom and its relationship with the needs of economic, social, and political conditions of today. She is Vice President of the Integral Education Society in New Delhi and the Managing Trustee of the Mothers Institute of Research. The Integral Education Society is running an elementary and secondary education school by the name of St. Emma Jaipuria School, Lucknow. As a trustee of Mothers Institute of Research, she studies Sri Aurobindo and Mother's evolutionary work, integral yoga, and educational reform. She also seeks to integrate matter and spirit with herself, bringing together in her house about 30 other aspirants to study the integral yoga of Sri Aurobindo and the Mother, the Vedas, the Upanishads, and the Bhagavad Gita.
I now request respected Director Sir, Dr. Rajiv R. Thakur, to welcome Mrs. Anjali Jaipuria with the bouquet. Thank you, sir. Ma'am, I would also like to thank you for the beautiful, thought-provoking message that you've sent us. Swami Vivekananda's life is an inexhaustible source of learning. So, without much ado, I would like to request Sri Banerjee to throw some more light on Swami Vivekananda's life history through his thoughtful delivery. महिषो वेदपारगाः ज्ञानेश्वरं तमाचार्यं वन्दे बद्धाञ्जलिर्मुदा नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदाः गुरवे सर्वलोकानां विषये निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् समर्थः शङ्कराचार्यः विवेकानन्द एव च एतेषां स्मरणान्नित्यम् आविर्भवति पौरुषम्। कल हमने सुना स्वामी जी का अमेरिका में पहुंच के सर्वधर्म परिषद में आगमन और उसके पश्चात स्वामी जी का प्रथम भाषण सितंबर की 11 तारीख को प्रारंभ हुआ। पहले दिन सारे धर्मों का परिचय भाषण था। हर एक को अपने धर्म का परिचय देना था, हर एक ने दिया। स्वामी जी अत्यंत डरे हुए थे, ऐसा स्वामी जी ने अपने पत्र में लिखा है। अपने धर्म का परिचय करने का जब स्वामी जी का अवसर आया, स्वामी जी ने रखा। स्वामी जी की विशेषता अन्यों से ज्यादा ये थी कि स्वामी जी ने आइडियल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन kept, and his book also is over there. He has written Ideal of Universal Religion. आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बट स्वामी जी started that by saying, my brothers and sisters of America. This is the start of globalization of Swami Vivekananda. So, जब परिचय भाषण हुआ, उस कुल 17 दिन की परिषद, from 11 to 27 सितंबर, 12 भाषण हो गए स्वामी जी के। पहले दिन परिचय भाषण हुआ, फिर उसके बाद 19 तारीख को पहले ही अनाउंस किया था कि स्वामी जी कल हिंदू धर्म का प्रबंध सादर करेंगे, हिंदू धर्म का पूरा समूल विश्लेषण स्वामी जी प्रस्तुत करेंगे। उस दिन स्वामी जी ने भी अपने पत्र में उल्लेख किया है, 19 तारीख को इतनी भीड़ थी कि पूरे हॉल में कहीं पे भी और बाहर भी जगह पर्याप्त नहीं थी। स्वामी जी ने इतना सुंदर निबंध प्रस्तुत किया, इसका भी चिंतन देखना चाहिए। स्वामी जी ने इस बात को रखा कि अपने हिंदू धर्म की विशालता कितनी, सर्वसमावेशकता कितनी है। क्रिश्चियन पादरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन धर्म में अक्सर यह सिखाया जाता है कि मनुष्य धर्म, मनुष्य जन्म हमें पाप के कारण पाप का उपभोग करने के लिए प्राप्त हुआ है। स्वामी जी ने इसका समूलतः खंडन करते हुए कहा, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जब ये बात इस मंत्र का विश्लेषण जब स्वामी जी ने किया कि पाप के कारण मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त हुआ है, ईश्वर, हम पाप के अंश नहीं है, हम ईश्वर के अंश है। गीता में भी भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। फर्क ये है, सारे क्रिश्चियंस, सारे ऑडियंस, ये बात बहुत नई थी। बार बार यही बात उन्हें सिखाई जाती थी क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा कि पाप के कारण
हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, यह पाप का परिपाक है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसका विश्लेषण किया और स्वामी जी ने जो अद्वैत की धारणा रखी, अब ये फिलोसफी का विषय है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। अद्वैत की जो बात, अद्वैत का जो सिद्धांत स्वामी जी ने रखा, कितना सुंदर और इतने सटीक प्रकार से रखा। उसके बाद मिशनरी ने कहना चालू किया कि यह जो जिस धर्म का प्रतिपादन, जिस विषय का प्रतिपादन स्वामी जी कर रहे हैं, वह विषय, वह धर्म, वह वेदांत वर्तमान हिंदू धर्म से उसका कुछ भी संबंध नहीं। या अपने तरीके से, अपने विचार से या अपने व्यक्तिगत विचारों से इन्होंने यह विचार रखा है, ये इन्होंने मत रखा है, पर वर्तमान हिंदू धर्म से इस वेदांत का कोई संबंध नहीं। स्वामी जी ने आगे भी उसका खंडन बहुत सुंदर किया और यह बात साबित कर दी कि हमारे परंपरा में जितने चीजें हैं वो अल्टीमेट वेदांत को पहुंचने के लिए है। सिंपल भाषा में कहना हो तो हमारा पूजा पाठ हो, हमारा योगाभ्यास हो, हमारा भक्ति शास्त्र हो, अल्टीमेट एम वेदांत। और एक जनरल बात यहाँ पे व्यवहार की कहता हूँ, हम किसी से मिलते हैं, अब हमारे आजकल तो ज्यादा प्रथा नहीं रही, पर पहले शब्द कहा करते थे मिलने के बाद दो जन, राम 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 राम। तो मीनिंग क्या था? बाद में तो लोग मीनिंग भूल गए, ठीक है, पर उसका मूल अर्थ बहुत सुंदर हमारे गुरुजनों के चरणों के पास बैठ के श्रवण करने मिला। उसका अर्थ था राम राम, तत्वमसि एंड अहम ब्रह्मास्मि। इतना प्रैक्टिकली वेदांत, इतना हमारे पूरे व्यवहार में, हमारे पूरे धर्म में, हमारे पूरे परंपरा में यह वेदांत की जो धारा है, वेदांत के लिए बाकी के सब अंग है और उसके पात्र बनने के लिए, उसके अधिकारी बनने के लिए यह सब चीजें बाकी की है। स्वामी जी ने इतना सुंदर वर्णन किया। यह 22 तारीख के व्याख्यान में, कुल 12 जो व्याख्यान हुए, 22 तारीख के व्याख्यान में स्वामी जी ने इस बात का वर्णन किया कि वर्तमान हिंदू धर्म और वेदांत का संबंध कितना गहरा है और उसकी झलक मैंने आपको यहाँ उदाहरण के रूप में व्यवहारता के तौर पर दी। बहुत सुंदर विश्लेषण, दीर्घ विश्लेषण स्वामी जी ने किया। उसके पश्चात फिर 25 तारीख को हिंदुत्व सार, इसमें अब हुआ ऐसा कि जो संचालक थे परिषद के, वह स्वामी जी का भाषण सबसे अंतिम में रखते थे। स्वामी जी संचालकों को कभी निराश नहीं करते थे, बीच में भी यदि बोलना पड़ता तो 10-15 मिनट स्वामी जी बीच में बोल लेते। तो और यदि जब लोग उठते हुए दिखाई देते तो संचालक फिर से अनाउंस करते कि स्वामी विवेकानंद इज गोइंग टू टॉक एट लास्ट। सो सबके भाषण, भोर भाषण लोग सुनते बैठते स्वामी जी का सुनने के लिए। पर इसका एक लाभ ये होता कि स्वामी जी को सबके मत सुनने का अवसर मिलता और वो उसके अनुसार उसका खंडन, उसके अनुसार उसका प्रत्युत्तर दे सकते। 25 तारीख के व्याख्यान में, 25 तारीख के स्वामी जी के प्रवचन के पूर्व मिशनरी ने कहा था कि क्रिश्चियन रिलीजन हैज टॉट वेरी वास्ट फिलॉसफी, दया की भावना जिसे वो कहते हैं। क्रिश्चियन धर्म ने पूरे विश्व को दया सिखाई और दया भाव जितना हमारे धर्म में है, उतना दया भाव, विस्तृत दया भाव, उतना विशाल दया भाव किसी के भी हृदय में नहीं है। इसलिए यदि उद्धार कराना है और यदि वास्तव में परम सत्य की प्राप्ति करनी है तो सबको क्रिश्चियन बनना चाहिए। लास्ट में स्वामी जी का जब भाषण आया तो स्वामी जी ने कहा, आपको दया पे बोलने का अधिकार नहीं है। You don't have the right. Why? Because we know how many Red Indians you killed over here and you started the America. आप क्राइस्ट बन के आओ, आपका स्वागत है। आप जहाँ गए वहाँ तलवार लेके गए, आप जहाँ गए वहाँ आपने कन्वर्जन किया और दया की बात आप करते हैं। स्वामी जी ने बात दिखाई, स्वामी जी के अंतःकरण में जीसस के प्रति इतनी आस्था थी। उनके, मैंने ये भी बात बताई थी कि प्रवास में 2 ही किताब रहती थी, एक तो बाइबल और दूसरी गीता, हमेशा पढ़ते थे। तो जीसस के प्रति बहुत आस्था थी। पर जैसे एक विदेशी फिलोसोफर ने कहा कि देयर वाज ओनली वन क्रिश्चियन टिल नाउ एंड दैट वाज क्राइस्ट। स्वामी जी ने इस भावना को दृढ़ किया और यह बात स्वामी जी ने भी आगे चल के अपने भाषणों में बताई है कि
स्वामी जी के प्रति यह भी एक प्रश्न उठाया गया कि आपको बाइबल पे बोलने का क्या अधिकार है? आपको बाइबल पे नहीं बोलना चाहिए, आप आपके धर्म का मत रखो। स्वामी जी ने कहा कि हमें बाइबल पे बोलने का अधिकार इसलिए है कि बाइबल में जो त्याग क्राइस्ट ने कहा, क्राइस्ट का एक वाक्य है बाइबल में, यदि सब सर्वसंग परित्याग करके, यदि आप सब छोड़ के, यदि आप निस्संग हो सकते हैं तो आप मेरे साथ आइए, मेरे मार्ग पे आइए। स्वामी जी ने मिशनरीज को पूछा है कि इस वाक्य को पढ़कर कितने मिशनरीज, कितने पादरी त्यागी हो गए। आज भी आप हमारी परंपरा में देखेंगे तो साधुओं में कुछ तो त्याग बचा है, पर उनमें वो स्टार्टिंग से नहीं था। क्राइस्ट ने उपमा दी है, स्वर्ग का द्वार कैसा है, सुई का जो छेद होता है उतना छोटा है, अर्थात उसमें प्रवेश करने के लिए त्याग की नितांत आवश्यकता है। स्वामी जी पे विभिन्न आक्षेप उठते थे, स्वामी जी उसका उत्तर देते थे। बाद में समारोपीय भाषण हुआ 27 तारीख को, बीच में भी स्वामी जी के व्याख्यान निरंतर चलते। समारोह स्वामी जी ने इस प्रकार से किया कि यह सर्वधर्म परिषद हमारे विश्व में बंधुत्व प्रदान करने वाली हो, विश्व को व्यापक धर्म देने वाली हो और विश्व को एक व्यापक प्रेम देने वाली हो। किसी ने भी यह बात इतनी विशालता से, इतनी विशाल हृदय से नहीं की। यह सर्वधर्म परिषद का हेतु स्वामी जी ने हमारे जब सुबुद्ध श्रोता, अमेरिका के सुबुद्ध श्रोताओं के सामने रखा, अत्यंत प्रसन्न और अत्यंत प्रभावित हुए। स्वामी जी के इस कहने के कारण, स्वामी जी के इस मत के कारण, स्वामी जी के इस प्रचार के कारण यह मत अमेरिकन न्यूज में आने लगा कि हमारे मिशनरीज क्यों पैसा इकट्ठा करके विदेश में जाते हैं कन्वर्ट करने के लिए, और स्पेशली भारत में। स्वामी जी ने एक बात और कही थी कि मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, आप जो इतने प्रभावित हो रहे हैं, यह बात भारत के सामान्य लोगों को भी परिचित, यह बात भारत के सामान्य लोगों को भी पता है। इसको सुनने के बाद अमेरिका के सुबुद्ध विचारक, अमेरिका के, और इतना ही नहीं, फिलोसोफर्स भी, उनका यह मत होने लगा कि पैसा इकट्ठा करके कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं। मिशनरीज ने इस बात का प्रचार किया था कि अत्यंत देहाती लोग हैं, वनवासी जैसे लोग हैं वहां पे, और वहां पे हम दया करने के लिए, और वहां कन्वर्जन, वहां ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए हम प्रदान करने के लिए जाते हैं। स्वामी जी साफ कहते थे, आप टेक्नोलॉजी के बारे में बोल सकते हैं, आप साइंस के बारे में बोल सकते हैं, पर वी डोंट नीड रिलीजन फ्रॉम यू। पूरे विश्व को धर्म प्रदान करने का सामर्थ्य, पूरे विश्व को धर्म किस प्रकार से व्यापित कराया जा सकता है, इस बात का सामर्थ्य हमारे हिंदू धर्म में है। पहले दिन के चिंतन में हमने देखा था, बहुत सूक्ष्म चिंतन था, ऐसा सुनने मिलना कठिन है। अपने धर्म के 16 स्तंभ बताए थे। कैन एनीवन टेल 16 स्तंभ जिसपे हमारी विशाल भारतीय संस्कृति खड़ी है, और जिसके कारण हमारे धर्म की विशालता और व्यापकता हमारे ऋषियों की ध्यान में आती है। एनीवन कैन 16 स्तंभ बताए थे। पहले गोल्स, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। देन वर्ण means the duties given, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य and शूद्र. Then ashrams means time management of life, brahmacharya, grihastha, vanaprastha and sannyas. And the 4 paths to get the ultimate truth, karma, योग, ज्ञान and भक्ति। ये 16 स्तंभ है। इतना व्यापक विचार, इतना सूक्ष्म विचार जितना भारतीय ऋषियों ने रखा, उतना किसी ने रखा नहीं। स्वामी विवेकानंद यही बात कहते थे, और इस कारण से अंतिम में जब अभिप्राय व्यक्त करने का अवसर आया, सर्वधर्म परिषद समापन की ओर थी, अभिप्राय व्यक्त करने का अवसर आया, तब संचालकों ने यही कहा कि यदि स्वामी विवेकानंद जी यदि नहीं आते तो इस परिषद में कुछ भी खास मिलने वाला नहीं था। वही मिलता जो प्लानिंग की हमारे मिशनरियों का था, और कुछ नया नहीं मिलता, और बहुत व्यापक चीज प्राप्त हुई। एक बात ध्यान देने की है, स्वामी विवेकानंद जी ने ये जो यश हासिल किया, स्वामी विवेकानंद जी ने जो सूक्ष्म विचार, और यह स्वामी विवेकानंद जी ने जो प्रसिद्धि प्राप्त की, प्रसिद्धि केवल मींस फेम नहीं,
नेम एंड फेम नहीं। प्रसिद्धि में स्वामी जी ने श्रद्धा हासिल की। प्रसिद्ध होना अलग बात है और उसको सामने वाले के प्रति श्रद्धा होना यह अलग बात है। फॉरेन कंट्रीज में जाकर भी श्रद्धा हासिल करना बहुत कठिन बात थी उस समय, क्योंकि वो पहले भारतीय थे जो प्रचार के लिए वहां गए थे। आज के जितना वो आसान नहीं कि फॉरेन में गए और मीडिया में आ गए और ये सब इकट्ठा। मींस इट वाज वेरी हार्ड एंड वेरी चैलेंज, बिग चैलेंज। स्वामी जी ने हासिल किया, इसका रहस्य कल बताया था और कल ये भी बताया था कि दिस इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। एनीवन कैन अगेन, व्हाट इज द की फॉर सक्सेस ऑफ स्वामी विवेकानंद इन देयर लाइफ? कल बताया था साफ साफ। So, yesterday I have told that the key of success of Swami Vivekananda's life was his sadhana. If anybody will read like Swami जी जितना पढ़ना शायद किसी के लिए संभव भी हो, फिर भी वो स्वामी जी जितना प्रभावी नहीं हो सकता। इसका कारण, और स्वामी जी ने पहले दिन भी मैंने पहले या दूसरे दिन भी इस बात की चर्चा की थी, और आज भी स्वामी जी जब फॉरेन से आके युवाओं को संबोधित करेंगे उस समय भी स्वामी जी ने यही कहा है कि हमारे सुधारक, हमारे प्रचारकों को धर्म के मूलगामी तत्वों का ज्ञान नहीं, एक, और दूसरी बात वह किसी मत को, पंथ को मानते भी हो तो भी उनकी साधना पूर्ण नहीं है, इसलिए उनकी दृष्टि पूर्ण नहीं हो सकती। दो चीज है, एक तो धर्म का मूलगामी ज्ञान और दूसरी उसकी साधना। इन दोनों में से एक भी कम हो तो उसके मार्ग पे चलने से खतरा ही है, बात निश्चित है। बात स्वामी जी कह रहे हैं। विदेश से आने के बाद भी जब युवाओं को स्वामी जी भारत में संबोधित कर रहे हैं, उसके अलग से उनके टॉक्स प्रसिद्ध है, उनकी किताबें प्रसिद्ध है, उसको निश्चित पढ़ना चाहिए। युवाओं को तो प्रेरणा, स्वामी जी युवाओं के लिए मुख्य प्रेरणादायक है। समारोह हुआ सर्वधर्म परिषद का, इतना विलक्षण प्रभाव हुआ और अमेरिका के सुबुद्ध और विख्यात लोगों को यही लगने लगा कि किसी भी प्रकार मिशनरीज अब भारत में भेजने की जरूरी नहीं है। और इसके साथ साथ संचालकों ने पत्र भारत में भेजा है कि इस प्रकार के सन्यासियों की आवश्यकता अमेरिका को है, इसलिए हम भारत को यह प्रार्थना करते हैं कि ऐसे यदि और सन्यासी हो तो उन्हें भेजने का काम करना चाहिए। स्वामी जी ने अपने गुरु बंधुओं को भी बाद में अमेरिका में रखा और फिर उसके पश्चात राम तीर्थ जी को भी प्रेरणा दी। स्वामी जी का बहुत अत्यंत सुंदर यश प्रस्थापित हुआ। उसके बाद प्रचार स्वामी जी ने आरंभ किया सर्वधर्म परिषद होने के बाद, बहुत अच्छी तरह से, बहुत सूक्ष्म तरीके से। और स्वामी जी का उद्देश्य जो था वह प्रशंसा हासिल करना नहीं था। स्वामी जी का उद्देश्य था कि वेदांत की, अद्वैत की जो व्यापक दृष्टि है, सर्वसमावेशक दृष्टि है। वेदांत की दृष्टि का मतलब सीधा अर्थ मैं आपको एक शब्द में बता दूं, सर्वसमावेशक दृष्टि, इसी का अर्थ सीधा वेदांत है, सर्वसमावेशक दृष्टि। तो वेदांत का प्रचार बाद में स्वामी जी ने अमेरिका में आरंभ किया। अब स्वामी जी अत्यंत प्रसिद्ध और पूरे अमेरिका के लोगों के दिल पे राज करने वाले थे। हमने देखा इस पहले दिन, जिस दिन उनका भाषण हुआ उससे एक दिन पहले रेलवे स्टेशन पे लगेज के सामान रखने के स्थान पे स्वामी जी पूरी रात खुले बदन रहे और वहां पे मुश्किल से सोए। दूसरे दिन भी कठिनाई आई। कहने का तात्पर्य है कि एक दिन के पश्चात वो विश्वविख्यात हुए और यह केवल अध्ययन से बात नहीं आती, उसके साथ साधना का, तप का बल चाहिए। फिर वो किसी भी प्रकार की, किसी भी पद्धति से की हुई साधना का बल हो, पर साधना का बल हुए बिना आदमी कार्य नहीं कर सकता। प्रसिद्धि हासिल करना अलग बात है। वेदांत का प्रचार बहुत अच्छी तरीके से स्वामी जी अमेरिका में प्रारंभ करते हैं। उसके बाद मिशनरियों को बहुत इस बात का कष्ट था, दुख था, और उन्होंने
उनके चरित्र पे भी कलंक लगाने का प्रयास किया, खूब उन्हें तकलीफ देने का भी प्रयास किया। पर अभी अमेरिका का जो सुमुख श्रोता समाज था और अभी जो वेल एजुकेटेड और वास्तव में समझदार अमेरिका के लोग थे, वो सब के सब अब स्वामी जी को सुनना चाहते थे। और स्वामी, पर इसके बाद भी यह आसान रास्ता नहीं था। यह प्रवास जब आप मूल में पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि स्वामी जी ने कितना कष्ट सहा है विरोधों का। और इसके साथ साथ सर्वधर्म परिषद होने के बाद भारत के जो प्रतिनिधि थे अमेरिका गए हुए वापस आए, जैन धर्म के हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के हैं, सब वापस आए। उन भारत के ही लोगों ने फिर स्वामी जी के ऊपर भी ईर्ष्या के कारण कुछ लिखना, कुछ अपप्रचार, दुष्प्रचार करना आरंभ किया। स्वामी जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत ध्यान देने की बात है, स्वामी जी ने व्यक्तिगत दुष्प्रचार पे कभी ध्यान नहीं दिया, पर धार्मिक दुष्प्रचार को कभी स्वामी जी ने सहा नहीं। दो बातें देखिए, और हम उल्टा करते हैं। देश के प्रति दुष्प्रचार होता है, धर्म के प्रति हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। व्हाट वी वांट टू डू ऑफ दैट। लेकिन स्वयं के ऊपर जब कीचड़ उछलता है तब अक्सर सामान्य मनुष्य यही करता है। पर स्वामी जी महापुरुष थे और महापुरुषों के लक्षण ही है। व्याख्यानमाला सुनने का हमारा उद्देश्य यह है कि केवल हिस्ट्री जानना नहीं, वी हैव टू टैली विद द सेंस, विद द पर्सनालिटीज लाइक दिस। यह गुण हमारे में आने चाहिए, इसलिए हमें सुनना है, इसलिए हमें पढ़ना है। पर पढ़ने से भी वह दृष्टि नहीं आ पाती, इसलिए उनको पुस्तकों की अध्ययन किए हुए से सुनना, यह हम इसका अवसर प्रदान किया गया है। स्वामी जी ने कभी व्यक्तिगत दुष्प्रचार की ओर ध्यान नहीं दिया। मिशनरीज परेशान करते थे। अब स्वामी जी को अलग अलग जगहों के आमंत्रण आने लगे। कई कई ऐसा भी होता था कि जहाँ स्वामी जी का आमंत्रण है उस दिन का, वहाँ पे स्वामी जी को बुलाया जाता था। और जब स्वामी जी पहुँचते थे और देखते थे तो वहाँ पता चलता कि अब ताला है, लॉक इज ओवर। मिशनरी अलग अलग प्रकार के प्रयास करते थे स्वामी जी को इस प्रकार के कष्ट देने का। स्वामी जी ने अपना प्रचार चालू रखा। स्वामी जी ने उस समय वेदांत सोसाइटी वहां पे स्थापित अमेरिका में, और आनंद की बात यह है कि वो आज भी चल रही है वेदांत सोसाइटी। और बहुत व्यापकता से उन्होंने वेदांत का प्रचार और वेदांत का स्वामी जी ने लोगों के आचरण में उनको उसे दिलाने का प्रयास किया। स्वामी जी के बहुत प्रिय शब्द है प्रैक्टिकल वेदांता एंड प्रैक्टिकल योगा। अब इसका अर्थ हमने केवल ऑफिशियल प्रैक्टिकल और बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल ऐसा अक्सर लिया हुआ दिखता है। किस प्रकार से प्रैक्टिकल योगा और प्रैक्टिकल वेदांता जीवन में आएगा, स्वामी जी के उद्देश्यों से ही आगे हम उसका विचार करेंगे। अत्यंत व्यापक प्रचार है, अत्यंत व्यापक स्वामी जी का प्रभाव वहां पे